اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس دنیا کا وہ واحد پروگرام ہے جو آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی خبریں لا کر دیتا ہے. ناظرین، گزشتہ دنوں مظفر آباد میں کشمیر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک پرامن مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے جو امتحانات ہیں وہ آن لائن لیے جائیں. یہ مطالبہ اپنی جگہ پہ جائز تھا، اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے کلاسز نہیں ہوئیں اور آن لائن جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا، اور کورونا سے بچنے کے لیے جو اس وقت مظفر آباد میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ان کے امتحانات جو ہے وہ آن لائن لیے. اس پر پولیس نے کیمپس میں گھس کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر بہیمانہ تشدد کیا. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ میں چاہوں گا کہ میں پہلے اپنے ناظرین کو، درشکوں کو وہ ویڈیو دکھاؤں. تو میں اسٹوڈیو سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو پہلے دکھائیں. وہ شیئر کر دیا گیا. وہ ماری ہے وہ جیدی ٹوٹا گیا ہے. اس کمرہ بند کرے، کمرہ بند کرے. پولیس والوں کا تو قصور ہے اور یہ لڑکوں کا اس کا جو مان ہے، ٹھیک ہے، ہم لڑکے جو ہے اسٹوڈنٹ وہ باہر نہیں آئے، یہ پولیس والے اندر گھسے، انہوں نے فائرنگ کی اور یہ لڑکوں کو مار کے برے طریقے سے مار کے لے کے جا رہے ہیں. بچوں کو اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے اور یہ بچوں کو بہت برے طریقے سے مارے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ چیز. ناظرین، آپ نے دیکھا کس بہیمانہ طریقے سے، کس بری طریقے سے طالب علموں کو پیٹا جا رہا ہے. آنسو گیس چلائی گئی، فائرنگ کی گئی. کیمپس کے اندر پولیس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ کیمپس میں گھسی اور پرامن طالب علموں پر تشدد کیا. ناظرین، یہ وہاں روز کا معمول ہے. نہتے شہریوں پر پاکستان کی سہولت کار حکومت جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہے، وہ کسی کو بھی مظاہرہ کرنے پر یا اپنا حق مانگنے پر اسی طرح ٹریٹمنٹ دیتی ہے. ناظرین، چلتے ہیں گلگت بلتستان. گلگت بلتستان میں پانی کی قلت بدستور جاری ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس حوالے سے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو دیکھیے جو بہت سارے دیہات کے لوگ اکٹھے ہو کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر گئے. دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو وفد آپ کے پاس یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ خطول کی اور ارد گرد کے مشکو گاؤں، دماس لو اور دماس جو ہے سارے کے سارے یہاں موجود ہے. یہ کوئی تقریباً 600-700 گھرانوں پر مشتمل کا علاقہ ہے. یہ واحد علاقہ ہے اس 21ویں صدی میں پینے کے پانی سے محروم ہے. یہاں آپ کو سنگھ کی تعداد میں ہیپیٹائٹس کے مریض ملیں گے. لوگ آئے روز آئے دن جو نا ہاسپٹلوں میں کیا ہوا پانی کے مسئلے کی وجہ سے. یہاں پہ 2 شفاف چشمے موجود ہیں. ایک چشمہ وہ ہے تقریباً 3 سے 4 کیوسک یہاں پہ پانی موجود ہے. اس پانی سے ایک ٹینکی بنا کے اس علاقے کو پانی دینے والی بات ہے، جس پہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو جن کو ہم کیا کہیں گے کہ انتشار پسند کہیں گے یا ان کو کیا اینٹی سٹیٹ کہیں گے. یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ بنے اور ان غریبوں کو کوئی مدد ملے، کوئی پینے کا پانی ملے. تو آج ہم ڈی سی صاحب کے پاس آئے تھے. وہ یہ کوئی ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں پلاننگ کی طرف سے. تو ہم نے ان کو باور کروایا ہے. ہم نے ڈی سی صاحب کو دعوت دی، وہ خود بھی تشریف لائے اور دیکھے اگر یہ کسی کی زمین کو افیکٹ کر رہا ہے یا کسی کے پانی کے رائٹس کو افیکٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آنے کو تیار ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر فوری طور پر کر کے یہ پروجیکٹ میچور ہو. تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ ودن 24 آورز جو ہے اس حساب سے غالباً ریکارڈ منگوایا ہے اور فردر جو اس پہ کام ہونا ہے 3 دن کے اندر کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا یا جہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجا جائے گا. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ڈی سی صاحب یہ کام کریں گے. اگر ان کیس اس میں پھر التوا میں ڈال دی جاتی ہے، پھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اگلے ہفتے کے اندر ہم ادھر آ کے ڈی سی صاحب کے پاس یہیں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. تو جب تک کہ ہمیں ان غریب غربا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارا پلی یا ہماری عرض آپ تک اسٹیٹ تک یہ ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے جفا کش لوگ اپنے حقوق مانگنے کے لیے ہر روز سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ریاست ان کو لالی پاپ دے کر کے 24 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے، 48 گھنٹوں میں وہ کر دیں گے، ان کو گھر بھیج دیتے.
600 घराने पानी से महरूम है नाज़रीन, और डीसी ऑफिस के सामने उन्होंने धरना दिया। 72 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, एक और खबर हमारे पास है जो आज अखबारात में छपी है, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अखबारात में, जिसमें यह कहा गया है कि मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा जो रास्ता हमवार करेगा पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के लिए। और 23 मार्च को ये ऐलान मुतवक्को है, यानी कि 23 मार्च को ये ऐलान मुतवक्को है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मसाइल पर बात करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की आईनी और कानूनी हैसियत को जानने के लिए मेरे साथ आज दो मेहमान हैं। हो सकता है कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से बीच में हम इंटरप्ट हो जाए, लेकिन मेरे साथ हैं इब्राहिम नगरी साहब जो पीपल्स राइट मूवमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन हैं, और कराकुरम नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन जनाब मुमताज नगरी साहब। मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इब्राहिम नगरी साहब आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या मसाइल दरपेश है। मेरा ख्याल है इब्राहिम नगरी साहब का इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो हम चलते हैं मुमताज नगरी साहब की तरफ। मुमताज नगरी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो सूबा बनाने की साजिश हो रही है ये क्या है, पहले आप जरा हमारे देखने वालों को गिलगित बल्तिस्तान के जो समाजी मसाइल हैं उनसे जरा आगाह करें कि किस किस्म के मसाइल से आप लोग वहां पे उनका सामना कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपने चैनल में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करने और गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने के लिए मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो ये कि जो मादनियात है वो चुपके से गैर मुकामियों के लिए लीज किया जा रहा है, जबकि मुकामियों को अपने इलाके के मादनियात निकाल के अपना रोजगार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, कराकुरम यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान में जो यूनिवर्सिटी उसका जो वीसी है वो एक मुतनाज़ा शख्सियत था, उसको दोबारा तानियात किया जा रहा है, जिसके लिए सरापा एहतजाज है पूरी बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा और अवाम वहाँ पे सरापा एहतजाज। इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में कोई एहसास नहीं है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तो मिनरल के हवाले से हुंजा नासिराबाद में जो एक कंपनी को दिया, दादा मेमन कंपनी के नाम से कोई कराची की कोई कंपनी है, उसको लीज पे दिया जा रहा है, जबकि मुकामी लोगों के लिए पाबंदियां हैं। अच्छा, इसी तरह बल्तिस्तान के अंदर जो है वहां पर जो अपने गैराबाद जगह को लोगों ने आबाद करने की कोशिश की तो उनको खालिसे सरकार के नाम से आबाद करने नहीं दिया, जबकि गैर मुकामियों को पंजाब से या दीगर इलाकों से ला के उनको बाकायदा अलाट करके वहाँ का जो डीसी होता है प्री प्लान पहले 2009 के जो पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने सूबे के नाम पे जो गैर मुकामी अफसरान को लाके तानियात किया, और वही लोग अब अपने इलाके के जो गैर मुकामी होते हैं गैर रियासती हैं उनको लाके वहां पर जमीनें अलाट करके एक जिस तरह अंग्रेज ने बरसगीर के अंदर जो पॉलिसी अपना रखी थी वो आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपना रहे, ताकि प्लेबिसाइट के दौरान में ये मतलब अक्सरियत में वोट दे सके पाकिस्तान के लिए। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। जी डॉक्टर साहब, तो अब ये सुनने में आ रहा है कि 23 मार्च को ये ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बना दिया। ये कैसे बना सकते हैं सूबा, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। जनाब, ये बना नहीं सकते हैं, बल्कि इसके हवाले से सबसे पहली बार जो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली पे किसी आहनी हाथ की करारदाद पर न कोई पाकिस्तान की असम्बली का, न किसी वज़ीर आज़म का है, न गिलगित बल्तिस्तान की अपनी हुकूमत का है, बल्कि किसी इदारे के चाइना के दबाव पे इदारे की तरफ से भेजी गई उस पे गिलगित बल्तिस्तान की कासिलेस असम्बली के मेंबरान ने उस पे दस्तखतें करके उस करारदाद के ऊपर अबूरी सूबे की बात की। तो इस पे सबसे पहले कराकुरम नेशनल मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1
में तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिकल 1 में गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा होने की हैसियत से ये नहीं आ सकते। ये आर्टिकल 1 उन इलाकों के लिए तरमीम कर सकते, जिस तरह पंजाब में ये 10 सूबे बना सकते हैं, सिंध में बना सकते हैं, KPK में बना सकते हैं, बलूचिस्तान में बना सकते हैं। वहाँ के लोग वहाँ कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें अलग अलग सूबे बनाओ, ये तरमीम करके वहाँ क्यों नहीं बनाए तो गिलगित बल्तिस्तान के। तो अबूरी का क्या मतलब, अबूरी प्रोविंशियल डोमिसाइल होती है जो 6 महीने के लिए वैलिड होती है, उसके बाद उसकी कोई हैसियत नहीं होती। क्या गिलगित बल्तिस्तान 6 महीने के लिए अबूरी सूबा बनेगा? इसके बाद ये अपनी मर्जी से वहाँ के मादनियात पे कब्जा करेंगे, जमीनों पे कब्जा करेंगे, रोजगार पे कब्जा करेंगे, तमाम वसाइल लूटने के बाद फिर कहेंगे कि भाई इसका मसला फिर मसले कश्मीर की वजह से गड़बड़ है। तो या क्या ये KPK का कोई तहसील बनाएंगे या फिर कोई जिला बनाएंगे या फिर इसी तरह फिर जो का तू छोड़ेंगे? तो ये अबूरी सूबा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब तक कश्मीरी जिंदा है, गिलगित बल्तिस्तान के गैरतमंद कौम जिंदा है, तो ये मुमकिन नहीं है। आज अगर ऐसा करेंगे तो भी कल इनके लिए वबाल अजान बन जाएगा या अबूरी सूबा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तरमीम नहीं हो सकता है। तरमीम करके क्या ये पूरी पाकिस्तान के असम्बली के अंदर पेश करेंगे? और पेश करेंगे तो भी कानून ये है कि भाई वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान असम्बली है, पार्लियामेंट के सेनेटर है, वो हमने मुंतखब नहीं किए, ये पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया अपने मामलात के हल के लिए। जो जुरिडिक्शन है वो अपने हलकों के मसाइल हल कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर मामलात के लिए वो कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मामलात में हमने उनको वोट नहीं दिया, तो वो हमारे मामलात में हमारे आईनी तरामीम हमें अपने साथ एडजस्ट करके अपने मफादात के लिए राह हमवार करने के लिए ये ऐसे सूबे बना नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत इस तरह की वो चीजें नहीं कर सकती है। इस वक्त सितम ज़रीफ़ी है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है, ये जब सब कुछ हो रहा है, और आलमी जो ह्यूमन राइट्स के इदारे भी खामोश है। बज़ात खुद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पहले की तरह जो कश्मीर या इंडिया वावेला कर रहा था वो भी खामोश है। इसके पीछे एक सवालिया निशान है उलमाए फिक्रिया। डॉक्टर तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं कि इसको अबूरी सूबा बनाया जाए? क्योंकि देखिए, अगर ये अबूरी सूबा बनता है या बनाया जाता है तो फिर ये तो मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान का मसला। तो आपको कितनी सपोर्ट है वहां गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पार्टी को? जी, इस वक्त ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की कासलेस हुकूमतें हैं, जो पार्ट एंड पार्सल है, जैसा कि वहाँ PTI है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या इस्लामी तहरीक है, ये सब के जितने भी है, JUI है, जमात इस्लामी, जितने भी हैं, इन सब की जो है हेड पाकिस्तान के अंदर है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है उनके। फिर भी वहाँ पर ये कि अवामी एक्शन कमेटी एक तहरीक है, उसमें पाकिस्तान की मतलब जमात इस्लामी के कुछ लोग हैं, पेश हैं, दीगर जो एक दो अफराद हैं वहाँ पर पेश हैं। लेकिन ये कि हमारी जो कौमपरस्त तहरीकें हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वहाँ पर जो कौमी काज के लिए बात करने वाली जो कुव्वतें हैं, जो तहरीकें हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ वो कि जो पाकिस्तान की जो पार्टियों के जो लोग हैं जिनकी कोई आईनी हैसियत वहाँ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1976 के तहत पार्टी वहाँ रजिस्टर्ड होती, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत असेंबली में नुमाइंदा जाता है। ये दोनों आइन गैर आइनी है, तो इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं है। तो वो असेंबली के लोग और उन जमातों के जो वहाँ के पार्ट एंड पार्सल है, वो कासलेस है, वो है तैयार है कि अबूरी सूबा बनाए, जिस तरह भी उनके लिए सस्ती शोहरत और मफादात मिले। बाकी जो कॉम्प्रेस जो कुव्वतें हैं वहाँ पर इस वक्त हर जगह, इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर गिलगित तक, जहाँ कहीं भी है, एक है, 10 है, 1000 है, लाख है, जितने भी हैं वो सरापा एहतजाज है और इस अबूरी सूबे के खिलाफ है। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर उनको नजरअंदाज करके सूबे का ऐलान करती है तो एक बहुत बड़ा बयान खेल खेल रही है और इसका खमियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। मुमताज साहब, आपका जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, इसके पंजाब से ज्यादा तो लद्दाख के साथ सकाफती और लसानी ताल्लुकात रहे हैं हमेशा माजी में, और जो स्कर्दू कारगिल रोड है वो भी कई बरसों से बंद पड़ी है। क्या आप समझते हैं कि स्कर्दू कारगिल रोड खुलनी चाहिए और स्कर्दू कारगिल रोड खुलने से
गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख के जो माजी के तारीखी रिश्ते हैं वो बहाल होने से कोई फायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान को? जी बिल्कुल, हमारे जो रिश्ते हैं, सकाफती रिश्ते, तारीखी रिश्ते, खूनी रिश्ते हैं, लद्दाख, करगिल, दराज जितने भी हैं उस इलाके तक हैं। बल्कि माजी में कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुकात रहे, पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं रहा। ये तो 47 की बात की कहानी हुई है। उसके से पहले तो इनका एक 1846 के बाद मुआहिदा अमृतसर के तहत एक रियासत बनी, जिसका सरबराह जो गुलाब सिंह था, एक रियासत बनी। उससे पहले हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो अपनी हुकूमतें, राज्यों की हुकूमतें रही है, अली शेर अंचन की हुकूमत रही है, रियासत बुरुशाल रही है, दर्दिस्तान की हुकूमतें रही हैं। उस दौरान भी कश्मीर के साथ लिंक थे, अच्छा काशगर के साथ लिंक थे, कभी पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं थे। तो इस हवाले से ये कि हम चाहते हैं कि वहां पर हमारा रास्ते खोले जाए, क्योंकि अगर ये लोग वहां का बॉर्डर खोल के अपने रिश्ते कायम कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, थर पाकर खोल सकते हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल सकते हैं, ईरान का बॉर्डर खोल सकते हैं, तो हमारे जो रास्ते हैं वो क्यों नहीं खोल सकते? दुश्मनियां इनकी है आपस में, तो हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमें क्यों रोक कर रखा है? सवाल ये बनता है कि भाई आज हमारे साथ जिन लोगों ने जो सलूक किया है, और बैन अवी ताकतों की खामोशी भी अफसोसनाक है। जी डॉक्टर साहब, ये जो 370 की धारा खत्म हुई है उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने तो बहुत प्रोपेगेंडा किया इसके खिलाफ, लेकिन भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस लद्दाख में बड़ी तेजी से सरमायाकारी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, अरबों रुपए के फंड्स वहां गए हैं। श्रीनगर जो है उसका एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, लद्दाख के एयरपोर्ट को भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि अगर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ जुड़ जाए तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत पाकिस्तान की कॉलोनी की तरह है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये कि हम चाहते हैं कि भाई लद्दाख हमारा हिस्सा था, चिनाकी कोहिस्तान, चतराल और अक्साई चीन हमारे इलाके हैं। तो इसके हवाले से हम कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी मंशूर्स में, तमाम नेशनलिस्टों के मंशूर्स में है। हमारे जो शहीद हैदर शाह जो BSF का बानी रहनुमा थे और एक कॉम्प्रेस साथी थे, बाद में वो BNF में शामिल हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तहरीक भी चलाई थी कि लद्दाख, करगिल लद्दाख रास्ता खोलो। उसके बाद उसके साथ जो सलूक हुआ है वो बाकायदा उसी तहरीक के बाद बाकायदा उसको फूड पॉइजन दिया गया, उसको शहीद किया गया सर जनाब। तो इसका हवाले से हम कोशिश में लगे हुए हैं। इब्राहिम नगरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा चलते हैं इब्राहिम नगरी साहब आपकी तरफ। आपको मेरी आवाज आ रही है इब्राहिम? जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। बहुत खुशी है आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं आपसे ये सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को आजकल वहां पाकिस्तान की गुलामी में रहते हुए किन मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने शो पे हमें इनवाइट कर लिया। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान क़यादत हैं उसके ऊपर जो है, सबसे पहले तो तालीम के ऊपर यहाँ पे बहुत से मसले हैं। स्कूलें बने हुए हैं, स्कूलों के अंदर जो है अच्छे टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। फिर जी अस्पतालों में कहते हैं स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हुए हैं डॉक्टर्स नहीं है। और इंटरनेट तो हम देख ही रहे हैं कि आपके साथ हमारा राब्ता कितना मुश्किल है, और ये मुमताज साहब के साथ हमारा कनेक्शन जबरदस्त चल रहा है क्योंकि ये कराची में आए हुए हैं तो वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से कितना मुश्किल है किसी गेस्ट को शो पे बुलाना, क्योंकि वहां इंटरनेट ही इतना कमजोर है। 1G 2G का इंटरनेट से इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप किसी को प्रोग्राम में दावत दे सकते हैं? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनका एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू किया जाए इब्राहिम नगरी साहब का, और वो आपके सामने पेश किया जाए। तो मुमताज साहब, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा कि अब ये 23 मार्च को सामने के, क्या आप समझते हैं कि
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई अवामी सतह पर ऐसा अलायंस बने जो इस पेशरफ्त को रोकने के लिए जद्दोजहद करे? जी, हमारा अलायंस पहले भी बना हुआ गिलगित बल्तिस्तान बचाओ तहरीक का नाम से। वो इसका चेयरमैन जो है शब्बीर मैयार साहब हैं, वो अभी आजकल मेरे साथ कराची में आए हुए हैं, यहाँ पे ही मौजूद है। तो आज कल भी हम साथ थे। तो बाकायदा तहरीक चल रही है और बन भी सकते हैं अलायंस भी। हम कश्मीर के कौम परस्तों के साथ भी मिलकर हम बना सकते हैं अपनी धरती को बचाने के लिए। अलायंस करना कोई मायूब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर दुनिया के ममालिक के साथ मिल के कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रही बात ये जो 23 मार्च का जो अनाउंस है, वो ये सी पैक के हवाले से चाइना के जोर पे ये दरबदर हो रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से कुछ अपने लिए राह हमवार करे और ये मुस्तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने कवानीन लागू करके वहाँ की जो आवाज उठाने वाली कुव्वतें उनको खामोश करा के हम अपनी मर्जी के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाए, वहाँ के वसाइल लूटे, वहाँ के कारोबार पे काबिज हो जाए, वहाँ की मुलाजमतों पे काबिज हो जाए। और सी पैक के हवाले से इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं रखा गया है। और वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो गेटवे गवादर को कहते हैं ये लोग, तो गेटवे तो गिलगित बल्तिस्तान खुंजराफ है, क्योंकि सी पैक तो चाइना ने शुरू किया है, या ईरान ने या किसी और मुल्क ने तो नहीं किया कि वो गेटवे है। तो गेटवे गिलगित बल्तिस्तान है और बिलखुसूस अंदर है हमारा खुंजराफ बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़े नुक्ते की बात किया आपने कि पाकिस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाना चाहता है, इसके पीछे भी चाइना का हाथ है। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपके साथ डिस्कशन की, और हमारे साथ जुड़े हुए थे मुमताज नगरी साहब जो चेयरमैन है कराकोरम नेशनल मूवमेंट के, और इब्राहिम नगरी साहब भी बहुत थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ इंटरनेट पे जुड़े, जो कि पीपल्स राइट मूवमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे यूके टाइम के मुताबिक इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।